کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک دن میں اوسطاً اپنا فون 2600 بار ٹچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کے مطابق کووڈ-19 کے پینڈیمک کے بعد سے ایک ایوریج پاکستانی کا ڈیلی سکرین ٹائم 7 گھنٹے ہو چکا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے اپنی موبائل کی سکرین کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے، یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہوئے، نیٹ فلکس اور دوسرے باقی کے پلیٹ فارم سے اینڈلیس سوچ کو کنزیوم کرتے ہوئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ اگر آپ لوگ روزانہ اس میں 7 گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا اثر صرف آپ کی اسٹڈی، جاب، بزنس یا آپ کی ہابیز پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ یہ آپ کے دماغ پر بھی ایک گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن سے اگر ان کا فون چھین لیا جائے تو وہ چڑچڑے اور ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو سٹریس ہونے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اب ایک ایڈکشن بن چکا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس ایڈکشن کی سائنس کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن اور شوکنگ بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی یہ لت سگریٹ، الکوہل، ڈرگز اور گیمبلنگ جیسی ایڈکشن سے کمپیئر کی جا سکتی ہے۔ ہاں، کوکین اور سوشل میڈیا تو ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ایڈکشن کا پیٹرن اور برین کا ری ایکشن آلموسٹ ویسے ہی ہیں۔ اسی لیے ہماری آج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ ایڈکشن ہمارے دماغ میں کس طرح کام کرتا ہے؟ اور سب سے ضروری، کیا اس کا کوئی سولوشن ہے بھی یا نہیں؟ دوستو، سوشل میڈیا کی ایڈکشن دماغ میں ڈوپامین سائیکل کے ذریعے کام کرتی ہے، جیسے ڈرگز اور الکوہل کی لت۔ ڈوپامین جو کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی کہ یہ برین میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو ایک حصے سے دوسرے حصے تک سگنل پہنچاتا ہے۔ کافی عرصے تک سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ ڈوپامین ایک پلیجر کیمیکل ہے، لیکن جدید ریسرچ کے مطابق اصلی ہیپینس ڈوپامین کے ذریعے نہیں بلکہ اینڈروفینز کے ذریعے آتی ہے۔ ڈوپامین کا اصلی کام ہے موٹیویشن اور ریوارڈ اینٹیسپیشن کرنا۔ مثال کے طور پر، جب بچپن میں آپ اپنے بابا کا انتظار کرتے تھے اور آپ جانتے ہوتے تھے کہ وہ آتے وقت آپ کے لیے چاکلیٹس لائیں گے، تو چاکلیٹ کھانے سے پہلے صرف انتظار کرتے ہوئے ہی آپ کے دماغ میں ایکسائٹمنٹ آ جاتی تھی، یعنی کہ آپ کا ریوارڈ اصل میں ملنے سے پہلے ہی اینٹیسپیشن کی وجہ سے ڈوپامین رائز کر جاتے ہیں۔ اصل میں دوستو، یہ پروسیس ہیلدی بھی ہے کیونکہ یہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن جب ریوارڈ بار بار ملتا ہے تو برین ڈوپامین ٹرانسمیشن کو بیس لائن سے نیچے لے جاتا ہے، اور ریپیٹڈ ایکسپوجر سے برین کرونک ڈوپامین ڈیفیسٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ صاف لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹ میں آپ اتنی آسانی سے خوش نہیں ہو پاتے۔ پلیجر کا وہی لیول پانے کے لیے آپ کو اور زیادہ سٹیمولس چاہیے، لیکن سوشل میڈیا نے اسی ڈوپامین میکینزم کو ہیک کر لیا ہے۔ آپ کے فون پر ہونے والا ہر سکرول، ہر ویریفیکیشن، ہر لائک آپ کے دماغ میں ایک چھوٹا ریوارڈ ٹریگر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنے فون کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے برین کو اگلے چھوٹے ریوارڈ کی امید ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا ہر سکرول، ہر کلک، ہر سوائپ ایک بیٹل فار اٹینشن کا ایک حصہ ہے، اور آج کی اس دنیا میں سب سے قیمتی ریسورس ہے آپ کا اٹینشن۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ سائیکالوجی اور ٹیکنالوجی کے سب سے ایڈوانس دماغ صرف اور صرف ایک ہی مشن پر کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے دھیان کو کیپچر کر پائیں اور اسے ہولڈ رکھ پائیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے ٹائم سونے تک آپ لوگ ایک انویزیبل جنگ میں جی رہے ہیں، اور یہ بیٹل صرف ڈسٹریکشن کی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے سوچنے کا طریقہ، ویلیوز اور آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی جنگ ہے۔ سال 1964 میں فلاسفر مارشل مکلوہان نے ایک بہت ہی گہری بات کہی تھی، "دا میڈیم از دا میسج"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن کا میڈیم جس سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو زیادہ گہرائی سے شیپ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ایکچوئل کانٹینٹ کیا ہے۔ یعنی کہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہی ہماری سوچ اور ہمارے بیہیویئر کو بدل دیتا ہے۔ سال 1837 میں جب ٹیلی گراف آیا، تب پہلی بار انفارمیشن کچھ ہی منٹوں میں دنیا بھر میں پہنچنے لگی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب تھا کہ انفارمیشن کی سپیڈ اس کی گہرائی سے زیادہ ہو گئی۔ ہیڈ لائنز چھوٹی اور سنسنی خیز ہونے لگی تاکہ لوگوں کی اٹینشن کو جلدی کیپچر کیا جا سکے۔ لوکل اور میننگ فل ڈسکشن کی جگہ فریگمنٹڈ اور ایرریلیونٹ معلومات آنے
आने लगी। फिर इसके बाद आया टेलीविजन। मूविंग इमेजेस प्लस साउंड ने इंफॉर्मेशन को हाईली स्टिमुलेटिंग बना दिया। अब लोग लॉजिकल आर्गुमेंट्स की बजाय विजुअल्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग से और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको राइटर की पूरी सोच को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जब आप टीवी देखते हैं तो आप स्पीकर्स के जरिए ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना कुछ भी ज्यादा सोचे समझे। साल 1960 में यूएसए में पहली बार टेलीवाइज प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जो कि था जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच। जॉन एफ टीवी पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे, जबकि रिचर्ड काफी ज्यादा परेशान और पसीने से तरबतर दिखे। और रिजल्ट ये निकला कि जॉन एफ ने लोगों का दिल जीत लिया, जबकि असल आइडियाज और मुद्दों पर ज्यादा बात हुई ही नहीं थी। अब हम कंपेयर करेंगे साल 1857 की लिंकन डगलस डिबेट पर। उस दौर में एक डिबेट 7 घंटों तक चलती थी। 3 घंटे एक बोलता, फिर ऑडियंस डिनर के लिए जाती, फिर 3 घंटे दूसरा बोलता, फिर आखिर में रिब्यूटल होता। उस टाइम पे ऑडियंस आइडियाज को बहुत ही ज्यादा गहराई से ऑब्जर्व करती थी, लेकिन आज की तारीख में किसी भी ऑडियंस का 7 घंटे एक ही जगह बैठना नामुमकिन है। सोशल मीडिया ने इस पूरे खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज इलेक्शंस आइडियाज से नहीं बल्कि कल्चरल लैंडस्केप और मीडिया मास्टरी की वजह से जीते जाते हैं। जो कैंडिडेट मीडियम को सबसे अच्छे से प्ले करता है वही जीतता है। यानी कि अब दुनिया सिर्फ इस बात से नहीं बदलती कि कौन से आइडियाज अच्छे हैं, बल्कि इससे बदलती है कि कौन से आइडियाज ज्यादा एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों, आज की सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैप है लाइफस्टाइल इल्यूजन। आप रोज ही देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर कार चला रहा है, तो कोई अपनी एक्सपेंसिव वेकेशंस पर है और कोई अपनी मिलीनियर जैसी जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन? एक यूके कपल अजय सिंह और सोफी ब्रोडी, इन दोनों ने मिलकर अपने जिम में से 18 लॉकर्स में से चोरी की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा सके, जिससे उन्होंने प्राइवेट जेट्स, दुबई ट्रिप, ये सब उन्होंने स्टोलन मनी से किया। और रियलिटी ये है कि आज वो दोनों जेल में हैं और इस केस में हस्बैंड को 3 साल और वाइफ को 2 साल की सजा हुई। आज तो मार्केट में ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो प्राइवेट जेट स्टूडियोज प्रोवाइड करती हैं, जहां आप कुछ ही पैसे खर्च करके फोटोशूट करवा सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप एक प्राइवेट जेट में ट्रेवल कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि आप एक स्टैटिक सेट पर बैठे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फोटोशूट के लिए बना था। सोशल मीडिया पर एक इल्यूजन और भी चलता है, पेड इंटरव्यूज और फेक इमेज। बहुत सी कंट्रीज में ये इल्यूजन काफी चलता है। कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान रिचेस्ट ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कहलवाने के लिए पेड इंटरव्यूज देते हैं। मतलब कि आप खुद सोचिए कि लोग अपना इंटरव्यू करवाने के लिए खुद पैसे देते हैं ताकि वो लोग खुद को एक बड़ा इन्फ्लुएंसर दिखा सकें, यानी कि सब कुछ पैसे से खरीदा हुआ इल्यूजन। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई 18 से 25 साल का स्टूडेंट या कोई जॉब सीकर इनके फेक लाइफस्टाइल को देखता है तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन पैदा होता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी ही उम्र का है लेकिन इतनी कमाई कर रहा है और मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये इल्यूजन डिप्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन और होपलेसनेस की तरफ ले जाता है। तो असल में सोशल मीडिया पर जो दिखता है वैसा होता नहीं। असली दिखने वाली जिंदगी और सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी दोनों असल में बहुत ही अलग हैं। इसी इल्यूजन की वजह से लोग खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं और यही है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इल्यूजन, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कि पूरी तरह से झूठी है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐप ही नहीं है बल्कि ये एक डेटा हार्वेस्टिंग मशीन है। आज ये आपके फोटोज और वीडियोस को ही सेव नहीं करता बल्कि आपके पूरे के पूरे डिजिटल लाइफस्टाइल को कैप्चर करता है। आप सोचिए कि फेसबुक के पास 18 डाटा सेंटर्स हैं जिनकी कॉस्ट $20 बिलियन से भी ज्यादा है। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी के सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। फिर भी ये सब हमें फ्री में क्यों मिलता है? इसका जवाब है कि हम खुद प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमारा डाटा प्रोडक्ट है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, तो असल में आप एक लीगल एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं जिस
जिससे आपका डाटा इन कंपनीज के पास जाएगा। सवाल ये आता है कि इतनी सारी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च ही क्यों कर रही हैं? तो इस सब का जवाब साफ है, अटेंशन। आज के टाइम पर सबसे महंगी कम्योडिटी जो माना जाता है वो है अटेंशन। आप स्पोर्ट्स की एक मिसाल लें, इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज्यादा पैसे कमाता है क्योंकि क्रिकेट पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान है। इसी तरह मूवीज, प्रोडक्ट्स और एक्टर्स ऑल गेट पेड मोर बेस्ड ऑन अटेंशन। तो अगर किसी के पास लोगों का ध्यान कैप्चर करने का तरीका है तो वो बिलियनियर बन सकता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये कंपनीज आपका डाटा लेकर करती क्या है? तो इसका जवाब सिंपल है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी बड़े शहर के मखसूस एरिया में लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं। सोशल मीडिया डेटा साइंस के जरिए ये पता कर लेता है। अब यही ब्रांड्स न्यूज़पेपर या टीवी एडवर्टाइजमेंट पर पैसे जाया नहीं करेंगे, वो सीधा सोशल मीडिया को पैसे देंगे और एड सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा जो कॉफी के एडिक्टेड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस कॉफी ब्रांड को कम खर्चे में ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हुए अपना नाम और फोन नंबर ही दिया था, लेकिन इन कंपनीज को हमारा इतना डाटा कैसे पता चल जाता है? असल में ये सोशल मीडिया एप्स आपकी हर चीज को ट्रैक करती हैं कि आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन किस चीज को लाइक करते हैं, किस चीज पर कमेंट्स करते हैं और किस जगह से लॉगिन करते हैं। आपकी अपलोड की हुई फोटो से आपकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और कैमरा के डिटेल्स निकाल लिए जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप फ्री में एंटरटेनमेंट पा रहे हैं, लेकिन असल में रियलिटी कुछ और है। असल में आप अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स बेच रहे होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल या डाटा चोरी की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक ट्रेंड और एल्गोरिदम कंट्रोल। आज इंटरनेट पर सबसे टॉक्सिक वीडियो वही हैं जहां पे लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जैसा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सिर पर एग फोड़ देते हैं, बच्चों को डराकर वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें वायरल कर देते हैं। आप सोचिए, सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए बच्चों की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। और डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि ऐसे ट्रेंड्स बच्चों की दिमागी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा वक्त में पीछे जाएं तो फोन का इस्तेमाल तभी होता था जब आपको किसी ने कॉल या मैसेज करना होता था। टेक्नोलॉजी का मकसद ह्यूमन कनेक्शन बनाना था, लेकिन आज आपका फोन एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहे हैं, अमेज़न से लेकर इंस्टाग्राम तक, जिससे लगे कि कोई इंसान कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन असल में रियलिटी ये है कि ये सब एल्गोरिदम का ट्रैप है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में टिकटॉक को बैन किया गया है, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी ही नहीं है बल्कि एक डेटा कलेक्शन कंपनी भी है। अब आप देखें कि चाइना में इसका वर्जन एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट करता है और वेस्टर्न कंट्रीज में वही ऐप टॉक्सिक और डेंजरस ट्रेंड चलाता है। और इस खेल में टिकटॉक एक अकेला खिलाड़ी नहीं है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी की एप्स ने भी उसी मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया है। आज हर एक ऐप रील्स और शॉर्ट जैसी एडिक्टेड ट्रेंड्स बनाने लगी है। आप सोचिए कि रोजाना एल्गोरिदम ही डिसाइड करते हैं कि आप रात को क्या देखेंगे, किस टॉपिक पर सोचेंगे, किस से इन्फ्लुएंस होंगे। ये एल्गोरिदम धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी चॉइस को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ही सालों में ये एल्गोरिदम्स 21वीं सदी के इंसानों के गॉड बन चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर ये हमारी सोचने की कैपेबिलिटी, हमारी चॉइसेस और हमारी फ्रीडम पर हमला है। अगर हम जागे नहीं तो हम धीरे धीरे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो देंगे, हमारी आजाद सोच। दोस्तों, प्रॉब्लम यूजर में नहीं और ना ही वीडियो में है, बल्कि असल में हमारा प्रॉब्लम है अटेंशन। और इसका तरीका भी है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं अगर इन छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करें तो। पहला स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, नोटिफिकेशन क्लियर कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि एप्लीकेशंस आपको कितनी बार चारा बनाती हैं। दूसरा स्टेप है माइंडफुल कंजप्शन। सिर्फ उसी कंटेंट का इस्तेमाल करें जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। और तीसरा स्टेप है लिमिट स्क्रीन टाइम। शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रैक्शन वीडियोस की बजाय लॉन्ग फॉर्म मीनिंगफुल कंटेंट पर तवज्जो दें। स्टेप नंबर 4, ब्रेक द एल्गोरिदम साइकिल। एल्गोरिदम को डिसाइड ना करने दें कि आप क्या देखेंगे, बल्कि खुद कॉन्शियसली चूज करें कि आपको क्या देखना है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल कर रही है। अब ये सब हम पर है कि हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते अपना
دھیان کھوتے جائیں یا پھر اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے کر خود ڈائریکشن دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گڈ بائے۔